संभालना आराम से बैग ले लो, ये पढ़ ले लो। चलो लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं था राइट? And today we are going to take आएगा अब मत करते हैं then we will cold Take sum number 9. Sum number 9. हाँ? ऊपर नहीं है? बोलो यार Look at sum number 9. Page 181. A and B are partners in a business sharing profits and losses as 3/4 and total. There are only 2 partners in the business. Their balance sheet as on 1st January 2015 is given below. Balance sheet दिया हुआ है. See the adjustments. D retires from the business owing to illness and 8 exit over. The following revaluation were made. तो 2 ही partners थे और उसमें से भी एक क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है. Are you getting that? 2 ही partners थे उसमें से भी एक हो रहा है रिटायर. So basically it becomes a sole proprietary business. Structure and adjustments everything remain the same. The following revaluation were made. Goodwill of the firm is valued at 25,000. That is the total goodwill. Depreciate plant and machinery by 7.5 and inventories by 15. That is reval. Doubtful debts provision be raised against trade receivable at 5% and discount reserve against trade payables at 2%. What is discount reserve against trade payables? RFDC, NRFDC. बराबर है? So basically NRFDC is an asset and NRDD is a liability. Okay? Required journalize the above transactions and close the partner's account as on 1st Jan 2011. Also give the opening balance sheet of it. So ledger और journal दोनों करने हैं. तो कौन से अकाउंट्स करेंगे हम लोग लेजर में? चारों अकाउंट्स है एक्सेप्ट फॉर गुडविल. बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ पार्टनर्स. So you have to make reval. You have to make a bank account. I think बैंक का कोई खास जरूरत है नहीं. You have partners capital. There are only 2 partners. And you have a balance sheet. Balance sheet is revised. First April 11 after retirement. Partners capital, there are only 2 partners, A and B. Here you have reval account and you have bank or cash. You just need to check. Cash in hand, cash at bank, दोनों दिया है. So make bank, cash goes to balance sheet, 1 million. Okay? Yeah. ये वही है. हो गया ना? रिजल्ट फॉर्म भिजवाना था. इससे दो फॉर्म इज गुड.
they are not selling the assets. They will continue. Partnership dissolve होके अभी सोल्व होता है. All right now, सबसे पहला क्या क्रैक करना है ये सम्स में एडमिशन रिटायरमेंट है सब में सबसे पहली चीज है गुडविल. Now in this sum I think goodwill is quite simple because who is retiring? B. Who is continuing? A. So who is gaining? A. Who is sacrificing? B. So what should be your entry for goodwill? A to B. And total की share. Obviously the share of goodwill will be given by A to B. Simple. So what is the profit sharing ratio? I think it is 3/5 and 2/5. You just need to calculate B's share of goodwill. In one line you can do that. B's share of goodwill. B's share of goodwill will be how much? 25,000 का 2/5 which is I think 10,000. This much goodwill will be given by A to B. You understood? What is the logic behind this? 25,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं आज की तारीख में 15 और 10 डिवाइड हो रहा है फ्यूचर में सारा का सारा ए को मिलेगा तो बी रहेगा बाहर बैठे बैठे मेरा प्रॉफिट ए बोलेगा चुप अभी लेके जा. So A is giving to B how much is share? A to B 10,000. Is it clear? So share of goodwill वही है कंसेप्ट अपना बट रेशियो का मगजमारी नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर है. सीधा जो B share of goodwill है that will be given by A to. Is this clear? सिंपल है goodwill समझ में आया? Only one partner, single partner to single partner. रेशियो का लफड़ा नहीं. Tell me the steps. First step. 150. Tell me the steps starting with opening balances. बैंक और कैश दोनों है तो मेक बैंक पुट कैश एंड एक्चुअली बैंक नहीं भी बना तो इसमें चलेगा आई थिंक क्योंकि एंट्री है ही नहीं. इवन इफ यू डोंट मेक अ बैंक अकाउंट इट इज फाइन. ओके नो एंट्री इन बैंक. सो गो टू कैपिटल स्ट्रेट बाय बैलेंस बीडी. हाँ बैंक चाहिए. Capitals of A and B 20 and 50. Do you have any reserves? Buy reserve, बराबर है. What are the reserves? 15,000 will be divided in the ratio of 3/5, 2/5. That is I think 9 and 6. You don't have any accumulated loss. You don't have any capital. So go to straight reval. Reval is also quite simple. Now this is a module sum. देखने में काफी easy है. नसीब रहेगा तो आ भी सकता है. 20,000 का कितना आता है? 1,500 आता है ये. Inventory by 15%, so 2 inventory. 15% से कम करना है तो I think 16,000 का 15% is 2,400, right? Reserve for doubtful debts, that is RDD, against debtors 2%, which is 300. And what is NRFBC, asset or liability? RFBC लिखो या NRFBC लिखो एक ही चीज है. So RFBC is your asset, asset बड़ा तो it's a gain. So it's 755%, and this is 2%. So 150. And that's it. The reval part is also done. RFDC is asset. All of you got that? RFDC. What is the entry to create RFDC? It is RFDC to PNL. Okay, RFDC fake asset बढ़ा और PNL आपका प्रॉफिट बढ़ा और ये RFDC आपका माइनस हो जाता है. बराबर है? Is this clear? RFDC subtracted from your creditors. Understood? Hello. So once that is done, you can calculate your profit or loss. I think it is 4650, right? Total 4,500 का I think loss दिख रहा है. Calculate. दोनों को जाएगा A and B because retirement कर रहे हैं हम लोग. So this is loss on reval. 3:2 में करेंगे तो कितना आ रहा है? I think
2700 एंड 1800 करस्पॉन्डिंग एंट्री आ जाएगी इधर टू रिवाल बराबर है 2700 फॉर ए एंड 1800 फॉर बी एंड हाउ आर वी गोइंग टू सेटल द रिटायरिंग पार्टनर सफिशिएंट कैश तो था ही नहीं बैंक में भी 6000 ही था हाँ गुडविल का एंट्री गुडविल ही रहेगा ए टू बी था ना ए टू बी था राइट ए टू बी कैप ए का कैपिटल घटेगा और बी कैप में बाय ए कैप इसका कैपिटल बढ़ेगा that's it sum is over how do you settle the retiring partner now cash or loan loan because you do not have sufficient cash you had you might have paid it so 2B is loan कितना आ रहा है 29,200 और A का आएगा 2 बैलेंस CD 29 minus 10 19 16,300 आ रहा है अभी पार्टनर्स कैपिटल के जगह नाउ इट्स अ सोल प्रोप्राइटर सिंपली ए कैपिटल ए का कैपिटल है 16,300 द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टार्टिंग विद प्लांट एंड मशीनरी हैज बिकम 18,500 inventory has become 13,600 trade receivables are debtors they were 15,000 less RDD was 750 so 14,250 bank balance is same cash balance is also same कैपिटल्स में एक का ही आएगा रिजर्व बॉन्ड एंड यू हैव ट्रेड पेबल्स में 7,500 माइनस RFDC that is NRFDC 2% which is 150 so 735 this should tally please don't 29 बी का ट्रांसफर किया है लोन में क्यों लोन में ट्रांसफर किया है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है तो विल यू पे ऑफ और ट्रांसफर टू लोन बिकॉज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी राइट ट्रांसफर इट टू लोन एंटायरली एंड लोन है तो किधर रिफ्लेक्ट होएगा इन द बैलेंस शीट राइट दिस इज एग्जैक्टली बेसिक सम ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड आपका तो 2 बार हो चुका है एडमिशन रिटायरमेंट एडमिशन तो हो ही गया है रिटायरमेंट अभी हो रहा है ऑलरेडी आपका रिविजन भी हो गया है डेथ इज सेम एज रिटायरमेंट डोंट मिस द टेस्ट ऑन संडे 2 बार हो गया पढ़ाई आपका सीए स्टूडेंट जाते हैं सीए इधर 12 में इधर स्कॉलर टाइप चलो कितने में हो रहा है टैली 5 to draw the journal how many entries you will have 1 for reserve second for goodwill 3 4 5 and loan class 6 journal entries single side this can come for 10 marks okay module है module did you get the problem any doubt in this basic problem था एकदम खाली goodwill का clear है concept A to B बाकी तो सब नॉर्मल ही था रिवाल बी का लोन में डाला लोन है तो लाइबिलिटी पेड ऑफ है तो कैश में जाता कर पाओगे जर्नल 6 एंट्रीज हैं कौन से 6 समझ में आए देख लो एक मिनट बोर्ड पे गाइस मनन
First entry for reserve. Narration चाहिए. Reserve distributed. Then goodwill A to B. Share of goodwill adjusted in partners capital. Reval loss. And then B. Balance will be transferred to you. Sorry. With narration, but right with narration. Come on. Finish off the journal quick. लोन आएगा ना बैलेंस शीट देना बाकी बैंक लोन है तो पे ऑफ देना बाकी है तो लाइबिलिटी. This was exactly like 12, nothing new as such. खाली गुडविल का एंट्री था. Share of goodwill adjusted in partners capital A to B. एक जन एब्सेंट कर आया इधर बैठा. गड़ा भी आया ये गाड़ी भी आया कौन भी आया ये राउटर नहीं है एक ही है उधर है क्या हाँ है तो सब लोग आया बोले अटेंडेंस मैं पाटिल आया ना लेके आएगा एक पाटिल निकल गया रिटर्न से गया रक्षा में आया मेरे को मैसेज आया 3 बेटा किया कंप्लीट. चलो जर्नल हो गया आपका 6 एंट्रीज विद नरेशन. कम ऑन फिनिश इट ऑफ. मॉड्यूल जो है ना इज्जत से करना. तू क्या कर रहा है फिर वाइड जर्नल बोला मैं What are you doing? जर्नल नहीं लिख रहा है. उनका बुक में लिख रहा है. दूसरा बुक किधर है? लेजर किधर है? चलो चलो बराबर. करो फटाफट जर्नल उड़ाओ. Last entry will be B's cap to B's loan. Being balance in B's cap transfer to B's loan. Being balance in B's cap transfer to B's loan. Being balance in B's cap transfer to B's loan. Being NRTC क्रेडिटर सेम देगा रिजर्व क्रेडिटर अगर डिस्काउंट दे रहा है तो क्रेडिटर बड़ा घटा तो हाँ. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. कॉमन नरेशन. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. कॉमन नरेशन फॉर एडमिशन रिटायरमेंट एंड एवरीथिंग. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. गुडविल का हर एक एंट्री नरेशन से. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. A B to C, A to B to C, A to B, सबका नरेशन से. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. Being balance in B's cap transfer to B's loan. Being balance in B's cap transfer to B's loan. Being balance in B's capital transfer to B's loan.
गया? जर्नल डन। समझा? एकदम बेसिक था, स्टार्टर एकदम पपलू। ठीक है, एक और मॉड्यूल सम है अभी नेक्स्ट। Another sum from module. चलो हो गया। Sum number 24 सम एकदम ध्यान से देखना। Page 119, sum number 24. This is also a module sum. I'll just discuss it because it is very similar to 12th standard. Sum number 24. You got to try this on your own. Only important thing I'll try and give it to you. Working note बना के, that is goodwill. वो भी आपको आता है, but just for the help sake I'll do it. Arav, Nirav and Purav मिला? Arav, Nirav, Purav are partners sharing profits and losses as 3:2:1. Sum number 24. All of you got that? ध्यान देना, अभी बात मत करना जरा भी। 24th sum. Look at the balance sheet. Balance sheet दिख रहा है? Purav retired from business on 1st April 2020. मिला? अपना बैलेंस शीट किस डेट का रहेगा? 1st April 2020. ओके, लेजर ही करना है, जर्नल नहीं है, लेजर एंड बैलेंस शीट। Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profit of past 3 years. कर सकते हैं? Goodwill was not to be raised in the books of account. लोग वैसे भी रेज नहीं करते, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट अलाउड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट 5%. समझा? आरडीडी बनाना है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. Stock is to be revalued at 71,000. That is all reval. Building to be appreciated by 20%. Normal है। Arav and Nirav to bring additional capital of 35 and 25,000. आता है? क्या एंट्री आएगी है? थर्ड स्टेप, बैंक टू कैपिटल, राइट? बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैश लेके आया। 12th में भी किया था ना? हेलो, थर्ड स्टेप, एडिशनल कैपिटल आरव और नीरव लेके आया। बैलेंस पेएबल टू पूरव मस्ट बी पेड इमीडिएटली, मतलब टू बैंक। इधर ये नहीं है, लोन नहीं है, इधर टू बैंक। तो बैंक में क्या आएगा? बाय कैपिटल। हेलो, पूरव्स कैपिटल में टू बैंक, तो बैंक में बाय पूरव्स कैपिटल। Will you have Purav's loan in the balance sheet? No. This is lump sum method. Lump sum मतलब paid off, और लोन को क्या बोलते हैं? Installment method. Lump sum मतलब paid off, installment मतलब transfer to loan. Got it? You have to make your reval account, partners capital and bank. सबसे पहले सबसे important, make the note for goodwill. So try to calculate the goodwill first. Years and profits. How many years average you have to take it on? 18, 19 and 20. 3 years average. 39, 50 and 55. Take the total. 144 is the total. बराबर है? Is that right? 1,44,000 is the total. So what is your average profit? 144 upon 3, 48,000 is the average. And what is your total goodwill? It is 2 years purchase, right? So 2 into 48,000. That is 96,000. 96 is total goodwill. Now is there any new ratio provided to you? Check. NR दिया है क्या सब में? चेक करो जरा ध्यान से। हेलो, है? एनआर दिया है कुछ? एनआर दिया ही नहीं है तो ओआर माइनस एनआर करना है। सीधा आप 12th के जैसा कर सकते हो। डिवाइड योर गुडविल इन विच रेशियो? गेन रेशियो। हाउ विल यू फाइंड आउट गेन रेशियो? उसका भी नोट करने की जरूरत नहीं है। कौन गया? पूरा। तो हटा दो उसको। सो व्हाट्स योर एनआर, व्हाट्स योर जीआर? 3:2, क्वाइट सिंपल। And will you divide 96,000 in 3:2 or the share? Share. Always the share of goodwill. अगर आप OR minus NR करते हो ना, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल गुडविल से। OR minus NR किया तो वो एक्चुअल GR एक्चुअल NR में, एक्चुअल GR एक्चुअल SR मिलता है। समझा?
वहां पे टोटल, यहाँ पे शेयर, तो यहाँ पे लिख लो पूरा शेयर ऑफ गुडविल. पूरा शेयर ऑफ गुडविल इज हाउ मच? 96,000 का आई थिंक 16,000. This 16,000 will be divided between Arav and Nirav. So who will give goodwill to whom? Arav Nirav to Purav ki Purav to Arav Nirav? Arav Nirav to Purav. कितना? 16,000 in which ratio? 3:2. So I think 9600 and 6400. Is that clear? 9,600, 6,400. That's your entry for goodwill. Arav Nirav to Purav. Did you get it? क्या किया? टोटल में शेयर लिया एंड शेयर गॉट डिवाइडेड स्ट्रेट इन द जीआर. एक और तरीका इसको करने का, ओआर माइनस एनआर करो और फिर क्या करो, उसको टोटल से मल्टीप्लाई करो, तो भी इतना ही आएगा. गेनिंग टू सैक्रिफाइस. समझा? हेलो हेलो हेलो. सो आरव नीरव टू पूरव 16,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2. व्हाट इज 3:2? जीआर. जीआर कैसे ढूंढा? समझा? हेलो. हटा दिया, तीसरे पार्टनर को हटा दिया, सीधा सीधा मिल गया आपको. गॉट इट? पक्का पक्का? एनी डाउट इन गुडविल? चलो उड़ाओ, 10 मिनट में उड़ाओ पूरा लेजर. 10 मिनट में कंप्लीट करो. स्टेप वाइज जाना. ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स, कैपिटल, गुडविल, रिवैल एंड रिटायरिंग पार्टनर को सेटल किया थ्रू कैश. कम ऑन, 10 मिनट्स. 8:23, 24.
ये वही वाला सम था जिसका मिसिंग है ना पेज, मिसिंग पेज है ना, वही बेकार वाला सम था ना, मैं ढूंढता हूँ। किसी का भी डालेंगे और सस्पेंस 1 रुपए का वो लोग एक्चुअली टोटल कर रहा है 1 रुपया सस्पेंस। ना कैलकुलेशन बहुत बड़ा अमाउंट, एनजीओ इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। अरे सर in the bank, no loan. नहीं बोला है you have to pay that pay. ओडी बोला है तो पे, ओडी लेके भी पे, बट पे इधर तो आ रहा है ना पहले पैसा, पार्टनर्स लेके आ रहा है। उसका 13,000 है। क्या कर रहा है? और है 4 मिनट। हाँ 24 तक करना है, हो गया ना? इतने टाइम तो होना चाहिए, अभी जो टाइम दिया था उसमें टाइम।
कर सकता है, उसको पे कर देगा, एक को होटल को 13 के आधी दे रहेगा मुझे। हो रहा है टैली कितना है रियल प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस ऑफ हाउ मच सॉरी हाँ 1500 and balance sheet 266,500 बराबर है। 266,500 No journal, only ledger. आया डन अरे अभी तो दिया तो तुझे मैंने कैसे मेरे हाथ में गिर गया। Next one, all of you finished? Yes. How many still doing? चलो चलिए वेट Next sum number 22. Sum number 22. Look at sum number 22. What is second sum? Can you see the balance sheet? One new thing you'll find. Goodwill. दिख रहा है? बट इधर ट्रीटमेंट अलग है, ध्यान से देखना। गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में 23,000। देन फर्स्ट April Nandu retired and the following adjustments have been agreed upon. Goodwill was revalued at 20. अभी आप वैसे तो अगर 12th में करते तो नेट राइट ऑफ कर देते ऑल टू गुडविल, राइट? इधर ऐसे नहीं करना, इधर ध्यान देना। बैलेंस शीट का गुडविल अलग है, नया गुडविल अलग है, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, बाबू एंड चंदू टू कंट्रीब्यूट 20 and 10, नया कैपिटल लाया, इस वाले सम में भी था। एंड बैलेंस ऑफ नंदूज कैपिटल टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ किया है कि लोन में डाला, बाकी सब नॉर्मल है। एक ही चीज एक्स्ट्रा है, इधर बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, कितना है? 23,000। नाउ प्रैक्टिकली आगे वाले जो भी आप सम्स करेंगे अभी गुडविल के इन द बैलेंस शीट या फिर इन रियल वर्ल्ड आल्सो, गुडविल बैलेंस शीट में कब आता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो अलाउड ही नहीं है, रेज गुडविल तो अलाउड ही नहीं है। तो व्हाट इज दैट गुडविल इन द बैलेंस शीट? दैट इज परचेज्ड गुडविल। व्हाट इज इट? परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब इनके बिजनेस ने किसी और बिजनेस को खरीदा होगा, इनके बिजनेस ने किसी और बिजनेस को खरीदा होगा,
तो उसके सारे एसेट्स के साथ क्या आ गया? गुड। समझा? तो बैलेंस शीट में गुडविल आना मतलब इट इज विच गुडविल? परचेज गुडविल। और 23,000 जो गुडविल दिख रहा है, 23,000 जो गुडविल दिख रहा है इन द बैलेंस शीट, दैट इज परचेज गुडविल। उसको हम रीसेल तो नहीं कर सकते, तो उसको क्या करने का? पूरा साफ, पूरा राइट ऑफ। तो सीए एग्जाम्स में याद रखना, कोई केस वेस का लफड़ा है ही नहीं इधर। केस 1 2 3 4 नथिंग यू हैव तो ऑलवेज एडजस्ट गुडविल इन द पार्टनर्स कैपिटल, राइट? So whenever you find goodwill in the balance sheet, whenever you find goodwill in the balance sheet, whether it is admission, whether it is retirement, whether it is death, whether it is change in profit sharing ratio, anytime you find goodwill in the balance sheet, it means it is purchased goodwill. It is purchased goodwill. तो वो क्या करना है? आप बेच तो सकते नहीं, it's a dead asset, you have to साफ ऑफ, राइट इट ऑफ। इज इट क्लियर? राइट ऑफ कर देने का उसको। व्हाट इज द एंट्री टू राइट ऑफ गुडविल? कौन करेगा? ओल्ड टू गुडविल, जो वहां पे केस 1 केस 2 में करते थे, याद है? वो यहाँ पे हर एक टाइम करने का। ओल्ड टू गुडविल 23,000, पुराना लॉस बेयर कर देने का ओल्ड पार्टनर। इज दिस क्लियर? पुराना गुडविल है, डेड एसेट है, इट्स लाइक अ लॉस, वो हम बेच तो सकते नहीं है, उसको साफ ही करना है। तो कौन साफ कर देगा उसको? ओल्ड पार्टनर। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है, क्या? ओल्ड टू गुडविल। कितना? फुल 23,000। ओल्ड टू गुडविल फुल, नेट वेट कुछ लफड़ा लोचा है ही नहीं यहाँ पे, सीधा ओल्ड टू गुडविल फुल 23,000। बात समझ आई? हेलो? तो एक एक्स्ट्रा एंट्री गुडविल की करनी है, ओल्ड टू गुडविल 23,000, बाकी एंटायरली द सम रिमेन्स सेम। जो नया वाला गुडविल दिख रहा है 20, उसको नॉर्मली ही करना है। वो कैसे करेंगे? न्यू रेशियो दिया है कुछ, देखो है कुछ न्यू रेशियो है क्या? तो सीधा सीधा गेन रेशियो मिल जाएगा। क्या है? 1 क्या है? 532। कौन गया? नंदू। मतलब जीआर क्या बना? 5:3 बराबर है। टोटल गुडविल कितना दिया है? नया वाला टोटल गुडविल 20,000। उसमें अपने को क्या ढूंढ लेने का? नंदू शेयर। व्हाट इज नंदू शेयर? 20,000 into 2/10, that is I think 4,000. Is that right? And this 4,000 will get divided in which ratio? Gain ratio. That is 5:3. 5:3. Got it? 4,000 will get divided in the ratio of 5:3. Simple. नया गुडविल अलग से ही लेने का। यही चीज 12th में गलत है। उधर हम लोग नेट वेट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो सब कंसेप्ट अभी है ही नहीं। रियल कंसेप्ट क्या है गुडविल का? जो भी अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसके लिए मॉनिटरी कंसिडरेशन देना जरूरी है। बिना मॉनिटरी कंसिडरेशन के कोई गुडविल दिख नहीं सकता। तो ये परचेज गुडविल है। कौन सा है? परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल मतलब किसी से खरीदा हुआ है, समझा? तो पुराना गुडविल पहले क्या कर देने का? साफ। गुडविल साफ इट ओल्ड पार्ट। ओल्ड टू गुडविल कितना? 23,000 इन विच रेशियो? ओआर। और फिर ये नए वाले का एंट्री क्या होगा? कौन किसको गुडविल देगा? बाबू चंदू टू नंदू। बाबू चंदू टू नंदू। दिस 4,000 will get divided in the GR. GR is what? 5:3. तो कितना आ रहा है ये? 2,500 and 1,500. बात समझ आई? Everything else remains same. One extra entry, that is old to goodwill. Got it? कर सकते हो? 10 minutes, get it? 10 मिनट ट्राई करो। नो 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 नो, अकाउंट बनेगा नहीं, सीधा राइट, सीधा राइट। गुडविल अकाउंट कोई भी सम में बनने वाला नहीं है। गुडविल अकाउंट कभी सीए में बनेगा ही नहीं, सीधा ओल्ड टू गुडविल साफ। Should I solve it? पक्का? मैं एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको बता देता हूँ खाली, ओल्ड टू गुडविल की। नहीं रेगुलर में ही बता। एक्स्ट्रा एंट्री जो है वो खाली देख लो, बाकी पूरा सब सेम है। ए बी सी। बाबू चंदू, बाबू चंदू नंदू ओल्ड टू गुडविल। तो पहले ये ओल्ड टू गुडविल साफ कर दो। कितना आ रहा है? 23,532 मतलब
4,600 पुराना साफ कर देने का, वो पूरा लॉस ये लोग ने खा लिया. In some cases, goodwill can be kept in the balance sheet and appreciated also. It is an intangible asset. अभी Facebook ने WhatsApp को खरीदा था, तो गुडविल का बहुत सारा पैसा दिया था, 18-19 बिलियन डॉलर दिया था, और WhatsApp को उसने अलग एंटिटी रखा है, मर्ज नहीं किया, तो उसका गुडविल भी उसके बैलेंस शीट में दिख रहा है और अप्रिशिएट भी हो रहा है वैल्यू में. तो आगे जाके आप किसी को WhatsApp बेचोगे तो उसको पैसा भी मिल जाएगा. अगर आप अपने ही बिजनेस में एक बना देते तो फिर नाम का कोई पैसा नहीं, इसमें नहीं है आपको. वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा था कि हर बार गुडविल साफ नहीं होता है रियल वर्ल्ड, कभी अप्रिशिएट भी हो सकता है और बैलेंस शीट में दिख भी सकता है. सीए एग्जाम्स में यहाँ पे तो आपको हमेशा साफ ही करते हैं ओल्ड पार्टनर टू गुडविल. गॉट इट? थियोरेटिकली हमेशा साफ करना है, प्रैक्टिकली कभी कभी रख भी सकते हैं और अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. बाद में सब नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल. 10 मिनट उड़ाओ, टाइम योरसेल्फ प्रॉपर्ली. पिछला सम आया सबको कंफर्टेबली? 10 मिनट्स. डेटर्स रिवैल्यूड मतलब टू डेटर्स, सीधा एफबीडी, एनआरडीडी नहीं है, एफबीडी. डेटर्स रिवैल्यूड मतलब टू डेटर्स स्ट्रेट. डेटर्स रिवैल्यूड मतलब टू डेटर्स सीधा. To FBD नहीं, सीधा टू डेटर्स. डेटर्स रिवैल्यूड इज सिंपली टू डेटर्स, सीधा टू डेटर्स. एडमिशन का मॉड्यूल से चालू कर देना सॉल्व करने का. एडमिशन मॉड्यूल का अपना शेयर द मॉड्यूल्स आ गए सबके. इसका बाकी है अभी भी मॉड्यूल आना. तो रजिस्टर नहीं किया क्या? रजिस्ट्रेशन किसका बाकी है? आपको नहीं लगता चाहिए करना? किसका बाकी है? रेज हैंड रजिस्ट्रेशन. भाई 2 3 4 5 6 7 8 करो फटाफट. मॉड्यूल्स मंगा लो, 2 टिकट कर ले. तुम अभी रजिस्टर करवाएगा, 1 महीने बाद तक मॉड्यूल आएगा, फिर और डिले होते रहेगा. रजिस्टर कोई हो गया. फिनिश टैली. यस सर. खाली फर्क है ये सब में यू आर नॉट पेइंग ऑफ. रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस किधर जा रहा है? आपका लोन में जा रहा है. इज इट क्लियर? रिटायरिंग पार्टनर्स बैलेंस इज गोइंग टू लोन. सॉरी
कितना आ रहा है लोन? 19,000 आया। 26,200 रिजर्व डाला क्या? डेबिट माइनस क्रेडिट बराबर છે. रिवेल का लॉस प्रॉफिट नहीं डाला. रिवेल में लॉस आया है, प्रॉफिट आ रहा है, तूने लॉस डाल दिया. ये बात है. 170. आवड़े છે લખી આખું आस्था को जो करे. You are not getting, you ask, okay? Any doubts, difficulties, you ask. OR. Hold to goodwill OR. No partners will bear the loss. It is purchase goodwill. Balance sheet goodwill is purchase goodwill. Saaf. Bear the loss. Whole partners will eat the loss. Everyone will eat it. कैसे भी कर मैनुअली कर रहे थे. करो कैलकुलेट, टैली करो, एग्जाम में मिलेगा. कौन पूरा टैली करो. Next class I am going to take admission plus retirement का problem, combined problem, Tuesday. बहुत सारा मिला schedule. मिला ना 15 अगस्त का. देव किसने बोला? देव किसने बोला? सुबह मत रखना. दे रहा हूँ. सुबह का 12 है. शाम को 3 बजे से मैराथन. 2 साल नवरात्रि से बाधा ले लो. 2 साल बाधा लेगा ना, पूरा लाइफ एकदम जलसे से नवरात्रि करेगा. 2 साल के शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म का वाट मत लगा. It's called deferred gratification. It's a gene. Scientific है deferred gratification gene. बहुत कम लोगों में रहता है. Who are ready to sacrifice the immediate benefit for some future good. Deferred gratification gene.
This is in Charlie Munger, poor Charlie Munger. Charlie Munger, partner of one. Remember 99. पूरा सब उसका क्या? चलो बोलो क्या? हो गया गरबा खेल के रैंक आता है बेटा। रैंक है ना खाली 50 लोग को आता है इंडिया में, टोटल मिला के 80 लोग को पेपर देते 1 लाख लोग। और आपको लगता है मुझसे स्मार्ट और ब्रिलियंट हो, खेलो रोज 4 घंटा खेलो। Look at the probability and then go for that. Rank आता है गरबा खेल। That's what I'm saying. If you have that much confidence and कर लेगा रैंक विद गरबा, रोज खेलना 4 घंटा। बिंदास खेल। वो अभी क्या बोला? रैंक बोला। तो अगर पास होने का सोच के गरबा खेले तो पास भी नहीं होएगा। अभी मानव से आया था मिलने, उसको 3rd रैंक आया ना फाइनल वाला। हाँ, ऑल इंडिया 3rd सीए फाइनल। तो ये कम टू मी, तो बात कर रहा था हम लोग, तो मेरे को बोला, मैं बोला उसको क्या लग रहा था तेरे को आएगा 3rd रैंक? बोलता है 3rd रैंक ऐसा नहीं, ऐसा 40-50 इतना लग रहा था, 35-40 में लग रहा था। बोला 35-40 में लग रहा था? हाँ 35-40 में उसको श्योरिटी था कि रैंक आएगा। 3rd रैंक उसको ऐसा सरप्राइजिंग लगा। रैंक का तो था ही उसको पहले से श्योरिटी। ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट आणि सेकंड आणि super intelligent, very smart. He did entire inter with online lecture and 18th rank. Manav sir. I was over. I was देखा भी था। इधर से आपको परवतना राजावाड़ी जागुलरी मानव सर वेरी स्मार्ट। और वो जो रैंक 1 रैंक 2 थे ना, वो फाउंडेशन में भी रैंक 1 रैंक 2 थे, इंटर में भी रैंक 1 रैंक 2 थे, फाइनल में भी रैंक 1। जो 3rd रैंक था ना, वो फाउंडेशन और इंटर में आया, लेकिन इसमें नहीं आया। इसको पीछे रखा, इसको जेलसी हो गया। इसको सुना है ये कंपटीशन ये होता है। चलो he was very smart। मानव है ना, उसको एक बार कोई चीज देख लिया ना, लेक्चर एक बार देखा ना, खत्म। नॉट इवन सेकंड टाइम। दैट्स स्मार्ट। ऐसा मानव जब मानव का गाइड हाँ उसको फाउंडेशन में भी स्कोर 356 तभी रैंक्स नहीं आता था। अदरवाइज वो भी टॉप 5 रैंक्स में था वो। नहीं, रैंक 362 था फर्स्ट, ही वाज इन टॉप 5। अगर देते तभी देते नहीं थे। अभी 1 साल से 20 रैंक चालू किया, तभी देते नहीं थे रैंक। 51 रैंक नहीं होता, टॉप 50 का। चलो अगला सबका मिला। Come on, take the next one. This is also
modules on silence. Second last. ध्यान दो इधर. Sum number 27. ध्यान दो. Focus. Sum number 27. देखो. And plus उसका foundation was in COVID batch. May 21 का attempt था. So half the studies we were taking online lectures. Half the time we used to take offline. 21 May attempt था उसका. और मोक्षित आया था मालूम है? मोक्षित उसी बैच का था. मोक्षित और CA final. So May 21. That's why उसको online का भी इतना लीव था ना. Full inter he took online on his own. Entire inter online on his own. 18th rank without any rank. Inter में दोनों होता offline online, but he took entirely online. Completely online. उसमें self discipline बहुत चाहिए. आपको मैं क्लास में बुला के थक जाते हैं, आप लोग एब्सेंट रह जाते हैं, सर बोला नहीं, ये किया नहीं होती है. खुद से करना अलग ही है. 27th one. Satyam, Shivam and Sundaram are partners of Messrs Great Stationers. Sharing profits and also 1:1:2. Modules from respect, come on. On 31st March 2020, the balance sheet was as under. Sum number 27. पिछला sum आया सबको? Just tell me the answers for previous sum. What is reval क्या आ रहा है? Profit of division 42, 20. and loan 26 to 100. और balance sheet 1,74,000. 173. 200 to 173. आंसर्स मिला. चलो अभी ध्यान देना. एडजस्टमेंट आया. सम नंबर 27. सत्यम, शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स. कैन यू सी द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है. सुनो. एसेट साइड आई थिंक इट इज प्रॉपर. Yeah, but liability side the amounts have been shifted a bit on the higher side. So you check. Capitals are 195, 148, 112. Did you get that? Then reserve का जो amount है ना, that is 80,000 actually. Previous page पे वो. If you want, you can write it there. General reserve is 80,000. Make that correction. एक amount ऊपर shift हो गया. General reserve is 80. फिर आप एरो कर सकते हो. लोन फ्रॉम सत्यम इज 94 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 75. डिड यू गेट दैट? एक अमाउंट खाली शिफ्ट हो गया. ओके. सो रिजर्व इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिजर्व इज 80. लोन फ्रॉम सत्यम इज 94,000. बराबर से कर लेना, फिर पूरा समूह सर पर के बैठा रहेगा. सुमित, रिजर्व इज 80. लोन फ्रॉम सत्यम इज 94 एंड क्रेडिटर्स आर 75. मिला सबको. Read. On 1st April 2020, Shivam retired from the business. Shivam, I think, is the second partner. Goodwill is to be valued at 1,20,000, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. वैसे भी नहीं दिखता है. 1,20,000 is total goodwill. Buildings to be appreciated, plant to be depreciated. ये सब normal है. Hello. Third point पढ़ो. Investments are to be taken over by Satyam in full settlement of his loan. Investments are to be taken over by Satyam in full settlement of his loan का मतलब क्या? यहाँ पे कोई पार्टनर का कैपिटल टेक ओवर नहीं कर रहा है. एक लायबिलिटी के सामने एक एसेट दे रहा है. तो लोन वैल्यू देखो कितना है. सत्यम लोन कितना है? 94. और इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 85. आपने 94 के लोन को सेटल करने के लिए 85 का इन्वेस्टमेंट्स दे दिया. पहले स्टेप में क्या करेगा? आप उसको रिवैल्यू करेगा. अब इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है कि लोन को घटाना है? क्योंकि 94 के लोन के सामने आपने 85 का इन्वेस्टमेंट चिपकाया है. तो लोन घटेगा कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा? पक्का? क्यों?
इन फुल सेटलमेंट, दैट इज द कीवर्ड। इन फुल सेटलमेंट मतलब बाकी का फायदा हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका। इज इट क्लियर? तो बराबर है सोच आपकी, लोन घटेगा, लोन घटेगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? 94 का लोन को बनाओ 85। गाइस बाय 9000 लोन घटा तो फायदा कि नुकसान? फायदा। तो बाय लोन 9000, लोन घटा। अब लोन के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट दे दिया तो क्या एंट्री करेंगे? लोन टू इन्वेस्टमेंट, लोन टू इन्वेस्टमेंट। क्या इधर इधर भी दिखेगा? तो बेसिकली इन द न्यू बैलेंस शीट विल यू हैव लोन, विल यू हैव इन्वेस्टमेंट? बोथ आर गॉन। इट इज लोन टू इन्वेस्टमेंट, खाली रिवल में दिखेगा बाय लोन 9000 और फिर गायब, दोनों बैलेंस शीट से गायब, बोथ हैव बीन गॉन अगेंस्ट ईच अदर। गॉट इट? ये है ना, पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया, मतलब कैपिटल में नहीं जा रहा, एक लायबिलिटी के सामने एक एसेट दे दिया आपने, समझा? सुना? तो एंट्री क्या बनेगी? लोन टू इन्वेस्टमेंट 85,000। पहले लोन को घटाओ फिर लोन टू इन्वेस्टमेंट। ऐसे क्रेडिटर के सामने डेटर सेट ऑफ किया तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स टू डेटर्स, मतलब क्रेडिटर को बोला आप डेटर से डायरेक्टली पैसा ले लो, तो क्रेडिटर टू डेटर, लायबिलिटी टू एसेट। बेसिकली द एंट्री इज लायबिलिटी टू एसेट। यू हैव नॉट डन दिस इन 12th स्टैंडर्ड। Then provision of 5% is to be made on trade receivable to cover doubtful debt. That is NRDD. Is that right? Hello. In the reconstituted form, the total capital will be 3 lakhs, which will be contributed by Satyam and Sundaram in their new profit sharing ratio, which is 2:3. What is this? PCA. याद करो एडमिशन में PCA के वक्त क्या होता था? याद है? एडमिशन में बेस लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। रिटायरमेंट में भी PCA किया है हमने। रिटायरमेंट में पीसीए के लिए क्या होना चाहिए? एनआर तो रेशियो है, टोटल कैपिटल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? किसी का कैपिटल बेस लेके कर सकते हैं, रिटायरमेंट में नहीं। रिटायरमेंट में याद करो पीसीए किया था, एक या दो सब में किया था, एक होमवर्क था एक क्लास वर्क था। रिटायरमेंट में अगर पीसीए है तो कुछ बेस वेस लेना नहीं है। क्या दिया होगा सब में? हमेशा टोटल कैपिटल। व्हाट विल बी प्रोवाइडेड? टोटल कैपिटल। हाउ मच इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म? 3 लाख। वो दे दिया आपको। वो 3 लाख कौन से रेशियो में डालने का? 2:3। व्हाट इज 2:3? एनआर। तो वो जाएगा 2 बैलेंस में, बाकी 2 कैश और बाय कैश। इज इट क्लियर? ये क्या है? पीसीए। लास्ट पार्ट इज पीसीए। The amount due to retiring partner shall be transferred to zero. You are required to give journal entries for the above and also prepare balance sheet thereafter. So directly balance sheet और journal पूछ लिया है, लेकिन balance sheet के लिए you have to make everything. You have to make bank, rival and capital as a note. तो पूरा ही समय big journal है। पहले ledger के लिए, उससे भी पहले goodwill, सबसे पहले goodwill। अब इस सम में can I go directly for goodwill GR करके? क्यों? OR भी दिया है और NR भी दिया है। Can you see that? OR कितना है? 1:1:2 और NR कितना है? I think 2:3. It's basically 2:0:3. Did you understand how? OR is 1:1:2 but NR is 2:0:3. Why? Shivam is retiring. So because they have given me NR, I have to do OR minus NR झक मार के। चॉइस ही नहीं है मेरे पास। Did you understand? ये लो, क्योंकि एनआर दिया है ये करना ही पड़ेगा OR माइनस एनआर। तो लेट्स कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस। दिस इज OR माइनस एनआर। तो सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। सत्यम का कितना आएगा? 1/4 माइनस 2/5। LCM is I think 5 minus 8/20 minus 3/20 I am getting. Is that right? 1/4 दूसरे का minus 0 which is 1/4 which is 5/20. Hello. And तीसरे का आना चाहिए 2/4 minus 3/5 which is 10 minus 12/20 which is minus 2/20. You can verify whether you have done it right or wrong. The gains will be equal to sacrifice. बराबर? So I think this partner is gaining, this partner is sacrificing, this partner is gaining, which is obvious because आपका NR is
The retiring partner will always sacrifice and the continuing partners will gain. अब इसको शॉर्ट गुडविल करने के दो तरीके हैं, क्योंकि इधर इंटरनल पीएसआर तो चेंज नहीं हो रहा है। दो तरीके आपके गुडविल के, एक खाली न्यूमरेटर उठाओ 3:2, गेन रेशियो 3:2 है, 3:2 में शेयर को डिवाइड करो, या फिर टोटल गुडविल को इससे मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सेम आएगा। दिया हुआ टोटल गुडविल आपको कितना है 1,20,000. I can multiply this directly by 1,20,000 actual gain, actual sacrifice. So how much do I get? I think this is 18,000, this is 30,000, and this is 12,000. Simple. So who will give goodwill to whom? I think gaining to sacrificing मतलब सत्यम सुंदरम to शिवम. Satyam Sundaram to Shivam will be 18, 12 and 30. That's my entry for goodwill. Did you all understand? दो तरीके हैं, या तो ये जो गेन सैक्रिफाइस आया या एक्चुअल गेन सैक्रिफाइस है मल्टीप्लाइड विद टोटल गुडविल, स्ट्रेट मेथड फॉर ऑल चैप्टर्स। या फिर एक और तरीका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरनल पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है, दो का गेन है एक का सैक्रिफाइस है, तो 3:2 में आई कैन डिवाइड द शेयर। शिवम का शेयर आई कैन टेक इन 3:2, तो भी आई गेट द सेम आंसर। समझा? हेलो, नाउ एवरीथिंग यू हैव टू रेट। जर्नल में डिस्कस कर रहा हूँ, लेजर ट्राई करो। सत्यम शिवम सुंदरम। एनी डाउट इन गुडविल? हेलो, गुडविल क्या है तुम्हारे में सबके? पक्का? 1 अप्रैल 2020 आएगा ये। दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट, बराबर है? हेलो, रिवैल एंड बैंक ऑल आर वर्किंग नोट्स। बताया नहीं ये टोटल किया ना, सीधा टोटल से ही ले लिया। शेयर से करते तो शेयर से करते, फिर अलग से लिखा। टोटल या शेयर दोनों में से एक अप्लाई कर लेना ना। करो, कितना आ रहा है अभी 27 में? सबसे पहला स्टेप बैलेंस। रिजर्व से कुछ है ना? रिजर्व 195, 148 and 112. Reserves का अमाउंट है 80,000. Did you all get it? करो रिजर्व 81, 20, 20, 40 आएगा। 20, 20 and 40. लॉस तो कुछ नहीं है। गो फॉर गुडविल। व्हाट इज एंट्री? सत्यम सुंदरम टू शिवम। तो सत्यम सुंदरम में टू शिवम दिस इज 18 and 12. इनका कैपिटल घटेगा एंड शिवम में बाय सत्यम एंड बाय सुंदरम 18 and 12. इसको पैसा मिल गया गुडविल का, ये हैप्पी हैप्पी जाएगा। गो टू रिवैल। रिवैल में बाय बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। कितना? 50,000। ओके। प्लांट डेप्रिशिएटेड कितना? 16,000। 16,000। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। डिड यू गेट दैट पॉइंट? इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर में क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट घट रहा है कि लोन घट रहा है? लोन घट रहा है। एक सेटलमेंट मतलब लोन घट रहा है, so that's your gain. So बाय सत्यम लोन कितना है? 9,000 का फायदा हो गया लोन में। फिर ये एंट्री आएगी लोन को इन्वेस्टमेंट नहीं, बैंक कुछ नहीं किया तो बैंक, ऑलवेज बैंक। ओके, बाय सत्यम लोन, ये लोन घटा, आरडीडी बढ़ा, सो 2 आरडीडी क्या कितना है? 5%। 3400 और कुछ खत्म। टोटल कर लो 59 आ रहा है। प्रॉफिट ऑफ हाउ मच?
कितना आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल? सॉरी 39 डिविजन 98। अच्छा प्रॉफिट। अभी रुकना इधर आके थोड़ा, इधर आपको पीसीए भी है। पीसीए याद है? पीसीए का कंसेप्ट क्या है? आज के बाद सबका कैपिटल विल बी पीएसआर। व्हाट इज द न्यू पीएसआर? व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:3। तो यहाँ पे कोई बेस नहीं आएगा। यहाँ पे पीसीए करने के लिए कोई बेस नहीं दिया होगा, सीधा टोटल कैपिटल दिया होगा। व्हाट इज द न्यू टोटल कैपिटल? आई थिंक इट इज 3 lakh and this will be divided in the ratio of 2:3. मतलब 1,20,000 between Satyam and Sundaram। 120 and 180 आया। तो आज के बाद ये होएगा इनका बैलेंस, टू बैलेंस CD 1,20,000 and 1,80,000। And what about this guy? इसको लोन में कि पे ऑफ है? लोन है, तो 2 शिवम्स लोन कर दो। कितना आ रहा है लोन? 207,900। दैट इज शिवम्स लोन 207,900। और इनका डिफरेंस कहाँ जाएगा? पीसीए 3 तरीके से होता था। पीसीए याद है? पीसीए 3 टाइप से पॉसिबल एडजस्टमेंट। क्या क्या? कैश, करंट, लोन। कैश, करंट, लोन। याद आया? कुछ नहीं दिया तो क्या अज्यूम करने का? कैश। पैसा लो, खत्म करो। टू बैंक बाय बैंक। किस तरफ आ रहा है डिफरेंस? सत्यम का क्रेडिट बढ़ा है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो क्रेडिट बढ़ा है। टू बैंक ना बराबर है। कितना? एंड सुंदरम का डेबिट बढ़ा है, तो वो घर से लाएगा ना भाग के पैसा। तो सुंदरम गया भाग के घर से पैसा लेके आया। कितना? सॉरी 20,200। सो बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट इधर आएगा टू सुंदरम 20,200 और इसका आएगा बाय सत्यम दैट इज 86,900। इतना सारा पैसा है ना बैंक? 90/720। सो बैलेंस कर लो बैंक का। हाई बैलेंस शीट कितना आ रहा है? सॉरी 29 ओके 29,020। क्या बोल रहे हैं? 3 लाख इन्वेस्टमेंट दिखेगा इन द न्यू बैलेंस शीट। गॉन वो जर्नल में दिखेगा एंट्री। यहाँ से गायब हो गया इन्वेस्टमेंट। स्टॉक तो वैसे का वैसा ही पड़ा है 45,280। ट्रेड रिसीवेबल पे आरडीडी आ गया आपका 68,000 लेस 3,400 तो 64,600 आई थिंक। बैंक हो गया, रिजर्व हो गया, कैपिटल। हाँ एक मिनट। सत्यम एंड सुंदरम 1,80,000 and 1,20,000 3 lakhs। प्लांट एंड मशीन है, प्लांट है now 1,44,000 right? What else? Loan from Satyam आएगा? Gone. Loan from Satyam gone. Did you get this part of loan and investments? Loan के अगेंस्ट क्या दे दिया हमने? इन्वेस्टमेंट। सो लोन घटा, इन्वेस्टमेंट घटा, दोनों गायब, दोनों बैलेंस शीट से गुड। लोन भी गया, इन्वेस्टमेंट्स भी गया।
जर्नल में मैं बताऊंगा लोन टू इन्वेस्टमेंट, वो अलग से एंट्री आएगा इनका। हाँ है ना जो अभी इसका और ये पीसीए समझ में है? पीसीए रिटायरमेंट के पीसीए के लिए क्या चाहिए बेटा? टोटल कैपिटल। या तो टोटल कैपिटल दिया होगा या टोटल कैपिटल ढूंढने का हिंट कुछ ना कुछ दिया होगा। टोटल कैपिटल तो चाहिए, इसको डिवाइड कर दे बेटा। ओके कर लो टैली। 582 चेक 582 900। एनी डाउट्स? देख लो ध्यान से and draw the journal, discuss the journal. Pro नेक्स्ट लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है रिटायरमेंट का। एब्सेंट रहे तो रिटायरमेंट से रिटायरमेंट ले लें। बोलने का मतलब एब्सेंट मत रहना, बस ट्यूसडे को आना। अटेंडेंस तो अच्छा आपके बैच का। थैंक यू सर। अकाउंटिंग, मैथ्स, लॉ, इको सब पढ़ने का और चार इंजन जोरदार चाहिए। जर्नल चलो ड्रॉ करो। एंट्रीज आपके आएंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 entries you will have 9. I'm discussing. You write, I'm discussing. डिस्कस कर रहा हूँ। 9 एंट्रीज है। पहले सब लेजर आराम से कंप्लीट करो, परफेक्टली करो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। गुड चांस ऑफ गेटिंग इन द एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि बहुत बार देखा हुआ 3-4 अटेम्प्ट में डेथ ही पूछा था इंस्टीट्यूट ने, फिर एडमिशन पूछा था, तो रिटायरमेंट बहुत टाइम से बाकी है। हाँ 9 180 is not here, still you have to pass. What? Loan to investment. Satyam's loan to investment. You set it off. Come on, Satyam's loan to investment that you need to pass separately. हो गया लेजर सबका? How many are still doing ledger? दादा नहीं पेपर बराबर खत्म होता है टाइम पे, छूटा नहीं है ना अब तक कभी? वही उनका छूटा पूरा सम 2 सम छोड़ गया था ना लास्ट में। 8 क्वेश्चन में से 6 ही किया था तुमने। एक ही छोड़ा। प्रियांशी का जुड़ जाता है। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। लक्ष्मी ने तो 2 ही पढ़ी, बाकी तो सब ऐसा चना बुरबुरा फेंक किया। आप चेक करो, कैसे चेक करने का आप देख लो सर, मेरे को इतना ही आता। गुड, परफेक्टली। बोलो बोलो। ये क्लास में नहीं। नहीं, आई डोंट नो। जर्नल करने के चलो अभी ध्यान से। फर्स्ट एंट्री, चलो बताओ क्या करोगे फर्स्ट?
Reserve to Satyam Shivam Sundaram. Start. Reserve to Satyam Shivam Sundaram. Reserve to Satyam Shivam Sundaram. Being reserve distributed. Being reserve distributed. Reserve to Satyam Shivam Sundaram. Being reserve distributed. Narration Lee Kalsi. Narration Lee. Being reserve distributed. Being reserve distributed. इन्वेस्टमेंट का जो एंट्री है वो दोनों लीगल पास करके कभी भी करो, एंड में भी कर सकते हैं। एंड में ही करो तो बेटर। मतलब दोनों रिवाइज करने के बाद करोगे तो भी चलेगा, एंड में भी करोगे तो भी चलेगा। Order is वैसे भी not important. You can do it in any order. This I have given so that you don't miss out on anything. तो टेक ओवर की एंट्री हम लोग करते हैं, रिवाइज करना तभी आप कर सकते हो। ये सब एक्सपेंड। फर्स्ट वाला क्या? रिजर्व टू सत्यम शिवम सुंदरम। सेकंड एंट्री फॉर गुडविल स्ट्रेट, आई थिंक, राइट? क्या है गुडविल की एंट्री? ये रहा, सत्यम सुंदरम टू शिवम। सत्यम सुंदरम टू शिवम। सत्यम सुंदरम टू शिवम। नो, सत्यम सुंदरम टू शिवम। नरेशन आता है इसका? बिग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल। Standard narration, being share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital. एंट्री आना चाहिए सत्यम स्टोर टू इन्वेस्टमेंट टू रिवाइव, क्योंकि 9000 प्रॉफिट ही हुआ है। वो डाल दिया ना रिवाइव में ऑलरेडी। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट का क्या एंट्री है? सत्यम लोट में और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी -9000 क्योंकि प्रॉफिट की एंट्री अलग किया हुआ है, तो वाई टू टेक अगेन, दो बार हो जाएगा। आर यू लिसनिंग? हेलो हेलो हेलो। सो नाउ रिजर्व किया, रिजर्व के बाद गुडविल किया, सत्यम सुंदरम टू शिवम। शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल डन। नेक्स्ट इज रिवैल। रिवैल का 1 2 3 कर सकते हो। रिवैल डेबिट, रिवैल क्रेडिट, प्रॉफिट ट्रांसफर। दिस इज योर एंट्री नंबर 3 4 5। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये उड़ाओ, 3 4 5 कर लो। 3 4 5 guys। सबमें क्या खाना है? एक मिनट। बोलो। होता है नहीं होता है, शेयर और डिविडेंड that is not a concern. सीधा इन्वेस्टमेंट इन डिमांड तो करनी पड़ता है, every share शेयर ऑफ गुडविल किया, रिवैल्यू किया, तीनों डेबिट्स रिवैल्यू, क्रेडिट्स रिवैल्यू, प्रॉफिट ट्रांसफर डन। नेक्स्ट या 9 एंट्रीज। यू डू दैट एक्स्ट्रा एंट्री। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा एंट्री? सत्यम्स लोन टू इन्वेस्टमेंट। सत्यम्स लोन टू इन्वेस्टमेंट कितना? 85,000। सत्यम्स लोन टू इन्वेस्टमेंट 85,000 being investments taken over by Satyam against loan. Being investments taken over by Satyam against loan. Being investments taken over by Satyam against loan. Being investments taken over by Satyam against loan.
गॉट दैट एक्स्ट्रा एंट्री, डोंट फॉरगेट दैट एक्स्ट्रा क्योंकि वो इधर दिख रहा नहीं है. लोन टू इन्वेस्टमेंट, देन दैट वाज 6, फिर 7, यू कैन डू दिस 7. लोन को खत्म करो, ये क्या होगा? शिवम्स कैपिटल टू शिवम्स लोन. शिवम्स कैपिटल टू शिवम्स लोन क्या होगा एंट्री? शिवम्स कैप टू शिवम्स लोन, नरेशन बी balance in Shivam's cap transfer to Shivam's loan. Being balance in Shivam's cap transfer to Shivam's loan. Being balance in Shivam's cap transfer to Shivam's loan. रिटायरिंग पार्टनर को खत्म किया. फिर नेक्स्ट ये इसका क्या एंट्री होगा? सत्यम कैपिटल टू बैंक. सत्यम कैपिटल टू बैंक 86,900 क्या होगा नरेशन? सत्यम कैपिटल टू बैंक बीइंग पीसीए एडजस्टेड या पीसीए डन थ्रू कैश या पीसीए डन थ्रू बैंक या सरप्लस पेड ऑफ टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट. पीसीए मेड थ्रू बैंक, सिंपल. पीसीए मेड थ्रू बैंक, प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट मेड थ्रू बैंक. पीसीए मेड थ्रू बैंक या प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट मेड थ्रू बैंक. हाँ 8 एंट्री बोल रहा हूँ. सत्यम कैपिटल टू बैंक ये 8 ही है. सत्यम कैपिटल टू बैंक, पीसीए डन थ्रू बैंक, पीसीए डन थ्रू बैंक. 9th will be also same but reverse entry. What is that? सुंदरम नहीं बैंक टू सुंदरम उल्टा. बैंक टू सुंदरम, बैंक टू सुंदरम being PCA done through bank. बैंक टू सुंदरम being PCA done through bank. मिला 8वां और 9वां. PCA का है लास्ट 2 एंट्री. Now sum number 25, that is your homework. I'm discussing, you just check sum number 25. 1 second. ये जो लोन वाला एंट्री है कैपिटल टू इसका भी ऑर्डर कर सकते हैं. Any order you can do the journal. चलेगा. I've given you the steps so that you don't miss out. Don't forget anything. Any order you can do the journal. 9 entries will be there. अभी सुनो. इधर गया 25 गाइस. 25 हमने अगर आपको याद होगा 12th में किया हुआ है. 4th या 5th सम है, देख लो ध्यान से. 25 अनंत बाबू चंदू दिख रहा है. प्रॉफिट लॉसेस इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल. कैपिटल है 20, 15 एंड 10. सो व्हाट इज द रेशियो? 4:3:2 मिला. पढ़ो. हु इज रिटायरिंग? बाबू. बीच वाला गया, बराबर है. सेकंड पार्टनर गॉन. Stock to be depreciated, manageable. Provision for doubtful debts brought up to 5%. NRDD. Factory land and building appreciated, reval. Provision of 770 made for outstanding legal repairs. नया liability है. अभी पढ़ो 5th point. Goodwill of the entire firm be fixed at 10,800 and Mr. Babu's share in the same is to be adjusted in the accounts of Anant and Chandu who are going to share in future in the ratio of 5/8 and 3/8. So what is 5/8 and 3/8? NR. So OR पता है, NR पता है. OR minus NR. Total goodwill पता है. काम हो गया आपका. मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, बराबर. No goodwill account being raised. वैसे भी करते हो आप. Goodwill account raise नहीं करते. 6th point, that the entire capital of the firm newly constituted be fixed at 28,000 between Anant and Chandu in the proportion of 5/8 and 3/8 and after passing entries for the account and goodwill, actual cash to be paid off or brought in by the continuing partners. मतलब ये क्या है? PCA के लिए क्या चाहिए रिटायरमेंट में? टोटल कैपिटल दिया है क्या? 28,000. कौन से रेशियो में जाएगा? 5:3 हो जाएगा बैलेंस में. फिर जो भी डिफरेंस जाएगा वो जाएगा टू बैंक या बाय बैंक. इज दैट क्लियर? कैश ब्रॉड इन और पेड ऑफ. लास्ट स्टेटमेंट समझा? तो PCA का ही बात कर रहा है, ठीक है. प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर. तो लेजर भी है और जर्नल भी है. मिला? 1 मिनट. Being investment taken over by Satyam against loan. Being investment taken over by Satyam against loan. Okay? एक सम होमवर्क है, इज्जत से जर्नल लेजर करके आना. और नेक्स्ट लेक्चर एब्सेंट मत रहना. चलो टाटा बाय बाय.